عملا مقبولا اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما ابریو اور نہیں میں بری الزمہ کرتا ہوں نفسی اپنے نفس کو، انا بے شک نفس لامارۃ نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا مگر ما رحیمہ جس پر رحم کرے، ربی میرا رب، انا ربی بے شک میرا رب، غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ وقال الملک اوتونی اور کہا بادشاہ نے، لاؤ میرے پاس بھی اسے، استخلص ہو میں اسے خالص کر لوں، لنفسی اپنی ذات کے لیے، فلما پھر جب کلمہ اس نے بات چیت کی اس سے، قالا اس نے کہا، انکا بے شک تو، الیوم آج سے، لدینا ہمارے پاس، مکین امین امانت دار مرتبے والا ہے۔ قال اجعلنی اس نے کہا مقرر کر دیجئے مجھے، علی خزائن خزانوں پر، الارض زمین کے، انی بے شک میں، حفیظ علیم بہت حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا۔ وکذالک مکننا اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے، لیوسف یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں، یتبوأ وہ رہتا، منہا اس میں، حیث جہاں، یشاء وہ چاہتا، نصیب ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت کو، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اور نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا اجر۔ اجر الآخرہ اور یقیناً آخرت کا اجر، خیر بہتر ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ جو ڈرتے ہیں۔ وجاء اخوہ اور آئے بھائی، یوسف یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا پھر وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، فعرفہم پس اس نے پہچان لیا انہیں، وہم جبکہ لہو اس سے، منکرون ناواقف تھے۔ ولما جہزہم اور جب اس نے تیار کیا انہیں، بجہزہم سامان ان کا، قال اتونی کہا، لانا میرے پاس، باخن بھائی کو، لکم اپنے، من ابیکم اپنے باپ کی طرف سے، الا کیا نہیں، ترونا تم دیکھتے، انی بے شک میں، اوفی پورا پورا دیتا ہوں، الکیلا پیمانہ، وانا اور میں، خیر بہتر، منزلین سب مہربانی کرنے والوں میں۔ فَإِن پھر اگر نہ، تاتونی تم لائے میرے پاس، بھی اسے، فلا تو نہیں، کیلا کوئی پیمانہ کوئی غلہ، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس، ولا تقربون اور نہ تم میرے قریب آنا۔ قالوا سنراود انہوں نے کہا ضرور ہم آمادہ کریں گے، انہو اس کے بارے میں، آباہ اس کے والد کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لفاعلون ضرور کرنے والے ہیں۔ وقال اور اس نے کہا، لفتیانہ اپنے غلاموں کو، اجعلوا رکھ دو، بضاعتہم پونجی، فی رحالہم سرمایہ ان کا سامان سفر، لعلہم شاید کہ وہ، یعرفونہ وہ اسے پہچان جائیں، اذا جب، انقلبوا جب وہ پلٹیں، الی اہلہم طرف اپنے گھر والوں کے، لعلہم شاید کہ وہ، یرجعون وہ لوٹ آئیں۔ اما رجعوا تو جب وہ لوٹے، الی ابیہم طرف اپنے باپ کے، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منیا روک دیا گیا، منا ہم سے، الکیلا پیمانہ غلہ، فارسل تو بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم ناپ بھر غلہ لائے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کی، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل امانکم کیا نہیں میں اعتبار کر سکتا تم پر، علیہ اس کے معاملے میں، الا مگر، کما جیسا کہ، امنتکم اعتبار کیا تھا میں نے تم پر، علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ پس اللہ تعالیٰ، خیر حافظا بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا، متاعہم سامان اپنا، وجدوا انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی کو، ردت جو لوٹا دی گئی تھی، الیہم طرف ان کے، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی اور کیا ہم چاہتے ہیں، ہذہ یہ ہے، بضاعتنا پونجی ہماری، ردت جو لوٹا دی گئی، الینا طرف ہمارے، ونمیر اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد اور ہم زیادہ لیں گے، کیلا پیمانہ یعنی غلہ، بعیر ایک اونٹ کا، ذالک یہ، کیل یسیر پیمانہ بہت آسان ہے۔ قال لن
उर्सिलहु, क्या हरगिज़ नहीं मैं भेजूँगा उसे, माकुम साथ तुम्हारे, हत्ता यहाँ तक कि तूनी तुम दो मुझे, मूसिक़न पुख्ता वादा, मिनल्लाहि अल्लाह के नाम से, लतातुन्नानी अलबत्ता तुम ज़रूर लाओगे मेरे पास, बिही इसे, इल्ला मगर, अन युहाता ये कि घेर लिया जाए, बिकुम तुम्हें, फलम्मा फिर जब, आतूहु उन्होंने दिया उसे, मूसिक़हुम पुख्ता वादा अपना, क़ाला उसने कहा, अल्लाह अल्लाह अला मा उस पर जो, नक़ूलु हम कहते हैं, वकील निगहबान। वक़ाला और उसने कहा, या बनिया ऐ मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबि वाहिद, ना तुम दाखिल होना एक ही दरवाज़े से, वदखुलू मिन अब्वाबि मुतफ़र्रिक़ा और तुम दाखिल होना मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से, वमा और नहीं, उग़निया मैं बचा सकता, अनकुम तुम्हें, मिनल्लाहि मिन शै अल्लाह से कुछ भी, इन्निल हुक्मु नहीं फ़ैसला, इल्ला लिल्लाहि मगर अल्लाह ही के लिए, अलैहि इसी पर, तवक्कलतु अलैहि तवक्कल किया मैंने और उसी पर, फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून तो बस चाहिए कि तवक्कल करें तवक्कल करने वाले। इस आयत में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रहमत से मुझे बचा लिया कह रहे हैं, अपनी पाकीज़ी नहीं बयान करें, अपना तकब्बुर नहीं दिखा रहे। यहाँ पर बेशक हर इंसान का नफ्स बुराई पर उभारता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी हर तरह से वाज़ेह हो गई थी, तो ख़यानत माल में ही नहीं इज़्ज़त व आबरू में भी हुआ करती है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की कुदरत, मुसब्बिबुल असबाब, अल्लाह ताला ये मुश्किलात से कैसे निकालना, ये तमाम वाक़या वही के वजह से हम तक पहुँचा है ना। तो नेक बंदों को आजमाइश ज़रूर होती है, अल्लाह ताला का एहसान है बंदे का टूटना, ताकि वो अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब हो जाए। अपने परेशानियों की वजह से दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, शिकवे शिकायत किए बगैर लोगों की मदद करें, अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखकर उसका अजर देने वाला है। बादशाह के दरबार से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बारात ज़ाहिर हो गई और बादशाह उन्हें ख़ास लोगों में शामिल कर लिया। मर्तबा वाला यानी मकीन और अमीन, ममलिकत का राजदान, अमानतदार और इज़्ज़त वाले को कहा जाता है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझे मुल्क के ख़जानों पर मुक़र्रर कर दीजिए ताकि बादशाह के ख़्वाब के मुताबिक क़हत साली के दिनों में गल्ले का इस्तेमाल हिकमत के साथ कर सकूं। ज़िंदगी में हालात हमेशा बदलते रहते हैं, मगर तक़वा सब्र से हमेशा काम लेना चाहिए, कभी मायूस और गुमराह नहीं होना चाहिए। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया। बादशाह ख़ुद भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करता था। पूरा मिस्र इनका वतन न था, फिर भी वहाँ उनकी हुकूमत चलती रही। तो अल्लाह ताला कहाँ से निकाल के उनको कहाँ पर बिठा दिया। देखें, जो मुल्क में वो पैदा हुए थे, पले पल रहे थे, बड़े होते, माँ बाप थे उनके वहाँ पर, वहाँ से उनके भाइयों ने उनके साथ जो साजिश की, उनके लिए बेहतर हुआ ना। कहाँ पर तख्त व ताज के मालिक बन के बैठे हुए और यहाँ पर एक मामूली से इंसान थे, है ना। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत से अता करता है और नेक लोगों की कोशिश को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। और यकीनन ईमानदारों और परहेज़गारों का आखिरत में भी अजर अजीम है। हम इंसान नेकियों का अजर फ़ौरन दुनिया में ही चाहते ना, मगर असल मोमिन का अजर आखिरत में है। और इसमें हमें क्या सबक है, जब कोई ओहदा अल्लाह ताला की तरफ से मिले उसकी मदद की जाती है और जानबूझकर मांग कर लिए तो फिर वो आजमाइश बन जाती है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मदद नहीं करता। आयत 58 में, इस आयत में उस वक्त का जिक्र है जब क़हत साली शुरू हो गई, जो मिस्र से लेकर तमाम इलाक़ों और शहरों को अपनी लपेट में ले लिया था, हत्ता कि कनान तक, जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे रिहाइश पजीर थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क़हत साली से निपटने के लिए जो इंतज़ाम किए थे वो अब काम आ रहे थे। हर तरफ से लोग गल्ला लेने के लिए अपना माल लेकर आ रहे थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को गल्ला लेने के लिए मिस्र भेजा। जब उन लोगों ने पहुंचा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, मगर वो लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अनजान बनकर अपने भाइयों से बातें पूछी तो उन्होंने अपने बारे में, तमाम घर वालों के बारे में बताया। एक इंसान को एक ऊँट उठाए से उतना गल्ला दिया जा रहा था। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं गल्ला बराबर देता हूँ और मेज़बानी भी करता हूँ, तो लिहाजा दोबारा आए तो अपने भाई को भी ज़रूर साथ लाना ताकि तुम्हें गल्ला दिया जाए। इस आयत में गल्ले की लालच के साथ धमकी भी दे दी कि अगर दोबारा अपने भाई को नहीं लाएंगे तो गल्ला भी नहीं मिलेगा और मेरे करीब भी नहीं आना। भाइयों ने कहा, हम उसके बाप को राज़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे, बिन्यामीन को साथ लाने की, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम या खादिम से कहा, जो पूंजी गल्ला के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई साथ लाए थे वो वापस उनके कजावे में यानी सामान के साथ रख दो, ताकि वो घर जाकर अपने सामान में माल देखकर दोबारा अनाज लेने आएंगे या माल लौटाने के लिए ज़रूर आएंगे, या फिर गल्ला लेने माल होगा तो ज़रूर लेने आएंगे।
تو یہ یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی اپنے بھائیوں کو دوبارہ اپنے پاس بلوانے کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی غلطیوں کے باوجود احسان کا معاملہ کیا تھا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ مالداروں کے پاس رحم نہیں ہوتا، وہ اکثر فرعون بن جاتے، جبکہ اللہ سارے خزانوں کا مالک ہو کر بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت 63 میں جب فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو باپ سے کہنے لگے، ہم سے تو آئندہ کے لیے غلہ روک لیا گیا ہے، کیونکہ بنیامین کو ساتھ لانے کی شرط لگائی گئی ہے، تو ضرور آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم اسی طرح دوبارہ غلہ لا سکیں، اور آپ خوف نہ کریں جس طرح یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجتے وقت کیا تھا، اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر جاتے وقت بھی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، میں دوبارہ کیسے تمہارا بھروسہ کروں؟ چونکہ قحط سالی تھی، غلے کی سخت ضرورت تھی، اس لیے بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے منع نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے راضی ہو گئے۔ بھروسہ ہمیں بھی کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چاہیے، اور ظاہری احتیاط ضروری ہے، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اب باپ سے تکرار ختم ہونے کے بعد سامان کھولا تو اپنا مال اسی میں پایا، تو کہنے لگے بادشاہ کا حسن و سلوک، مہمان نوازی اور پھر مال بھی واپس کر دیا، تو پھر اب کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ نہ بھیجیں، تاکہ ایک اون غلہ زیادہ آ جائے گا اور ہماری ضرورت اچھی طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر وعدہ نہ کرو تو بنیامین کو میرے پاس واپس لاؤ گے، تو سوائے اس صورت میں کہ تم سب پر اجتماعی کوئی مصیبت آ جائے، یا تم سب ہلاک کر دیے جاؤ یا گرفتار کر لیے جاؤ، تو جس پر تم کو کوئی طاقت اور قدرت نہیں، تم معذور رہو گے جب۔ تو بھائیوں نے پکا وعدہ کر کے بھائی کو ساتھ لینے پر آمدہ کر لیا، یعنی باپ کو۔ جب بچے نکل رہے تھے تو باپ نے کیا نصیحت کی، اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے، اور اپنے 11 بیٹوں کو سفر پر جانے سے پہلے یہ ہدایت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز کو میں تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، مگر میرا بھروسہ اللہ پر ہونے کے بعد تم لوگوں کو تاکید کرنا یہ ظاہری اسباب کے تحت ہے، تو احتیاط تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا یہاں پر، اور اصل حفاظت کے لیے تو توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے۔ تو نظر لگنا برحق ہے، ہمیں قرآن سے اور حدیث سے پتہ چلتا، اس کے لیے شرعی دم سورہ فلق، سورہ ناس اور حدیث میں دعائیں ہیں جو اس کے ذریعے سے حفاظت میں آ سکتا ہے، یعنی تدبیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی نظر بد کی وہی الہی کی روشنی میں تدبیر تھی، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہ مبارک لنا، ایسی چیزیں ہمیں کہنا چاہیے۔ نعمتوں کو چھپائے، لوگوں کے سامنے فخر کرنے کے لیے ظاہر کرتے نہ بیٹھے، اور نہ ہی وہم میں مبتلا ہو جائے۔ لما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم، حکم دیا تھا انہیں، ابوہم، ان کے والد نے، ما کانا، نہ تھا، یغنی، کام آتا، انہم، من اللہ، انہیں اللہ سے، من شیئن، کچھ بھی، الا، مگر، حاجہ، ایک حاجت تھی، فی نفس، دل میں، یعقوب علیہ السلام کے، خزاہا، اس نے پورا کیا جسے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو علم، البتہ علم والا تھا، لیما، بوجہ اس کے جو، علمناہ، سکھایا ہم نے اسے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف علیہ السلام پر، آوا، اس نے جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، اخاہ، اپنے بھائی کو، قال انی، اس نے کہا بے شک میں ہوں، اخوکا، تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس تو رنج نہ کر، بما، بوجہ اس کے جو، کانوا یعملون، تھے وہ عمل کرتے۔ فلما جہزہم، پھر جب اس نے تیار کر کے دیا انہیں، بجہزہم، سامان ان کا، جعلا، اس نے رکھ دیا، سقایا، پیالہ، فی رحلی اخی، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم، پھر، اذن، پکارا، مؤذن، ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا، جبکہ وہ متوجہ ہوئے، علیہم، ان کی طرف، ماذا، کیا چیز، تفقدون، تم گم پاتے ہو۔ قالوا نفقد، انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں، سواء، پیمانہ، الملکی، ولمن، بادشاہ کا، اور اس کے لیے جو، جاء بہ، لائے اسے، حملو، بوجھ ہے، بعیرن، ایک اونٹ کا، وانا، اور میں، بہ، اس کا، ضامن ہوں۔
قالوا تاللہ، انہوں نے کہا قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، علم تم جان لیا تم نے، ما جینا نہیں آئے تھے ہم، لنفسدہ ہم فساد کرنے، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں، کننا سارقین ہم چوری کرنے والے۔ قالوا انہوں نے کہا فما جزاؤہ، تو کیا بدلہ ہے اس کا، ان اگر کنتم کاذبین ہو تم جھوٹے۔ قالوا جزاؤہ، انہوں نے کہا بدلہ اس کا، من وہ جو اجیدہ وہ پایا گیا، فی رحلہ اس کے سامان میں، فہوا تو وہی، جزاؤہ بدلہ ہے اس کا، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، ظالمین ظالموں کو۔ فبدأ پس اس نے شروع کیا، بِأَوْعِیَاتِہِم ان کے تھیلوں میں، قبل پہلے، وعائی تھیلے، خرجی سے، اخیہم اپنے بھائی کے، ثم پھر، استخرجہا اس نے نکال لیا اسے، من وعائی تھیلے سے، اخیہ اپنے بھائی کے، کذالک اسی طرح، کدنا تدبیر کی ہم نے، لیوسف یوسف کے لیے، ما کانا نہ تھا وہ، لیاخذا کہ وہ پکڑ سکے، اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین قانون کے حساب سے، الملکی بادشاہ کے، الا مگر، ان یشاء اللہ کہ وہ چاہے اللہ، کہ جو چاہے اللہ، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات من نشاء درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، وہ فوق اور اوپر، کلی ذی علم ہر علم والے کے، علیم خوب علم والے کے۔ قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، فقط تو تحقیق، سرقہ چوری کی تھی، اخن بھائی، لہو اس کے، من قبل اس سے پہلے، فاثر رہا تو چھپا لیا اس کی بات کو، یوسف علیہ السلام نے، فی نفسی اپنے دل میں، ولم اور نہیں، یبدیہا اس نے ظاہر کیا اسے، لہم ان کے لیے، قال انتم کہا تم، شر برے ہو، مکانن مقام میں، واللہ عالم بما تصفون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسے جو تم بیان کر رہے ہو۔ قافلے والے اپنا سامان لے کر نکل پڑے تو ایک منادی نے کہا اے قافلے والو تم چور ہو، کیونکہ پانی پینے کا پیالہ یا ناپ تول کا پیالہ سونے یا چاندی کا تھا، جس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا تھا، جس سے وہ نوکر واقف نہیں تھا اور قافلے والوں کو علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں، کیا چیز گم ہوئی ہے تمہاری؟ تو جواب دیا کہ بادشاہ کا شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے، جو کوئی اس کو ڈھونڈ لائے گا اس کو انعام کے طور پر 1 اونٹ غلہ دیا جائے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ تو بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے، ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، یعنی یہاں پر چوری کو بھی فساد کہا گیا، اور نہ ہم چور ہیں۔ چور پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے۔ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اور انہیں پتہ تھا فلسطین کا کیا قانون ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کرنے والے کو جس کا مال چرایا جاتا ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سکھائی تھی، علم و حکمت عطا کری تھی نا یوسف علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اور کرنی تھی بنیامین کے ساتھ، تو نیک لوگوں کی آزمائش ضرور کنٹینیو چلتے رہتی، انسان کے گناہ معاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا بھی ہے، اور اس پر صبر شکر کرنے سے، توبہ استغفار کرنے سے اس کے درجات بھی بلند فرماتا۔ تو بعض دفعہ آزمائش انسان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہو سکتی، یا پھر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے غموں کی کیا وجہ ہے، یا کس وجہ سے ہمارے زندگی میں مصائب آ رہے ہیں، آزمائش آ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ عالم۔ تو جو بھی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، تو آخرت میں صبر کرنے والوں کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اگر بیماری، مال، اولاد، عزت کے ذریعے کر آزمایا جا رہا تو ہمیں اس سے بہترین آخرت میں دیا جائے گا۔ تو ہر علم والے کے اوپر دوسرا ذی علم موجود ہے، علم والوں کی قدر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ تو بھائیوں نے فوراً کہا اگر اس کے پاس سے چوری کا سامان ملا تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کیا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑی بات، اتنا بڑا الزام سننے کے باوجود صبر و تحمل سے کام لیا اور خود کو ظاہر نہیں کیا۔ اگر ہم ہوتے تو ہم فوری بھڑک اٹھتے تھے نا۔ تو دیکھیں یہاں پر یوسف علیہ السلام کا صبر، جبکہ وہ بادشاہ مصر تھے، چاہے تو وہ فوراً سزا بھی دے سکتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، کبھی کبھی حکمت کی وجہ سے خاموشی اختیار کرنا بھی چاہیے۔ دل میں کیا ہے، تم بدتر جگہ میں ہو، جو تم بیان کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، انا بے شک، لہو ابا شیخن کبیرہ، اس کا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا، فخذ تو پس رکھ لے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ ہو اس کے بدلے، انا بے شک ہم، نراکا ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین احسان کرنے والا۔
क़ाल माज़ल्लाहि, उसने कहा अल्लाह की पनाह, अन नाख़ुज़ा, कि हम पकड़े, इल्ला मगर, मैं वजदना, उसको पाया हमने, मताना, सामान अपना, इंदहु, उसके पास से, जिसके इन्ना, बेशक हम, इज़न, तब, लज़ालिमुन, अलबत्ता ज़ालिम होंगे। फलम्मस्तयअसू, फिर जब वो मायूस हो गए, मिन्हु, उससे, खलसू, वो अलग हो गए, नजियन, सरगोशी के लिए, खाला, कहा, कबीरुहुम, इनके बड़े ने, अलम, क्या नहीं, तालमु, तुम जानते, अन्ना आबाकुम, तुम्हारे वालिद ने, बेशक तुम्हारे वालिद ने, क़द अक़ज़ा, तहक़ीक़ लिया, अलैकुम, मौसीक़ा, पख्ता वादा तुमसे, मिनल्लाहि, अल्लाह के नाम से, व मिन क़ब्लु, और इससे पहले, माँ, जो, फ़रतुम, कोताही कर चुके तुम, फ़ी यूसुफ़ा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में, फ़लन, अब रहा, तो हरगिज़ ना मैं टलूँगा, अल अर्ज़ा, ज़मीन से, हत्ता, यहाँ तक के, याज़ना, इजाज़त दे, ली, अभी, मेरे वालिद मुझे, और यहकुमा, या फ़ैसला कर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ली, मेरे लिए, वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वह बेहतर फ़ैसला करने वालों में से है। इरजिऊ, लौट आओ, इला अबिकुम, तरफ अपने वालिद के, फ़क़ूलू, फिर कहो, या अबाना, आए हमारे अब्बा जान, इन्ना, बेशक, इब्न का, आपके बेटे ने, सरक़ा, चोरी की थी, वमा, शहीदना, और नहीं गवाही दी हमने, इल्ला, मगर, बिमा, अलिमना, वो जिसका इल्म था हमें, वमा, और नहीं, कुन्ना, थे हम, लिल गैबी हाफिज़ीन, गैब की हिफाजत करने वाले, बस अलिल क़रिया, और पूछ ले बस्ती वालों से, अल्लती, वो जो, कुन्ना, थे हम, फ़ीहा वल ईरा, जिसमें, और काफ़िले वालों से, अल्लती, वो जो, अक़बलना, आए हम, फ़ीहा, जिसमें, व इन्ना, और बेशक हम, लसादिक़ून, अलबत्ता सच्चे हैं। क़ाल बल सव्वलत, क्या बल्कि अच्छा कर दिखाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्सों ने, अमरन, एक काम, फ़सब्रुन, तो सब्र ही, जमीलुन, अच्छा है, असा अल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह ताला, अन, के, यातियानी, वो ले आएगा मेरे पास, बिहिम, उनको, जमीयन, सबके सबको, इन्नहु, क्योंकि वो, हुआ, वही, अलीमुन हकीम, बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला है। व तवल्ला, और उसने मुँह फेर लिया, अन्हुम, उनसे, वक़ाला, और बोला, या असफ़ा, है अफसोस, अला यूसुफ़ा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर, वबियज़्ज़त, और सफ़ेद हो गई, ऐनहु, दोनों आँखें उसकी, मिनल हुज़्नी, गम की वजह से, फ़हुवा कज़ीम, पस वो गम से भरा हुआ था। क़ालू तल्लाही, उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तफ्तऊ, आप हमेशा रहते हैं, तज़कुरु, आप याद करते हैं, यूसुफ़ को, हत्ता तकूना, यहाँ तक कि आप हो जाए, हरज़न, बीमार, और तकूना, या आप हो जाए, मिनल हालिकी, हलाक करने वालों में से। उसने कहा, इन्नमा अश्कु बस्सी, बेशक मैं शिकायत करता हूँ अपनी बेक़रारी की, व हुज़्नी इलल्लाह, और अपने गम की अल्लाह की तरफ से, वालमू, और मैं जानता हूँ, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मा ला तालमून, जो नहीं तुम जानते। या बनिया, ऐ मेरे बेटो, इज़हबू, जाओ, फ़तहस्ससू, पस राग लगाओ, मैं यूसुफ़ का, वाक़ई, और उसके भाई का, वला, और ना, तयअसू, तुम मायूस हो, मिन रूहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, इन्नहु, क्योंकि वो, ला यअसू, नहीं मायूस होते, मिन रूहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, इल्लल कौमुल काफ़िरून, मगर वो लोग जो काफिर हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, ऐ बादशाह मिस्र, इसका बाप बूढ़ा शख्स है, उसके बदले में हमसे किसी एक को ले ले, हम आपको नेक इंसान समझते हैं। मोहसिन यानी जेल वाले भी यही कहे थे ना, तो उनके अखलाक देखे कितने आला थे। अब भाई भी उन्हें मोहसिन कह रहे हैं, बुरे के साथ भी भलाई करने वाले थे ना, इसीलिए, जबकि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, और यहाँ सामने उनको नहीं पहचान के उनको मोहसिन कह रहे हैं। देखें कैसी चाल होती सरकश लोगों की। तो आयत 79 में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके पास चोरी का सामान निकले, उसके बजाय किसी और को गिरफ़्तार कर लूँ, तो उससे अल्लाह ताला की पनाह में चाहता हूँ, क्योंकि एक की सज़ा दूसरों को देना नाइंसाफ़ी हो गई। अब भाइयों को मायूसी हुई, तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे, बाप को कैसे मुँह दिखाएंगे। उन्होंने तो अल्लाह की कसम खाकर पुख्ता वादा करके आए थे ना। तो बड़े भाई ने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं है बाप के सामने जाने की, जब तक बाप मुझे इजाज़त ना दे, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मेरा फ़ैसला कर दे, क्योंकि वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तो अल्लाह ताला बड़ा यहाँ इसलिए कहा क्योंकि वो नादिम हुआ और अच्छाई का जिक्र किया, बुराइयों को छुपाना और अच्छाइयों को ज़ाहिर करना सिखाया गया है। यहाँ पर किसी का नाम लेके अल्लाह ताला ने कुरान में किसी को जलील नहीं किया ना। तो आम इंसानों में खैर और शर दोनों होते हैं। तो बड़े भाई ने अपने भाइयों को याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा बुनियामीन के बारे में
के पास से चोरी का सामान निकला। जो अहद अल्लाह के नाम हमने किया था वो हमारे इल्म के मुताबिक था। मुस्तक़बिल के बारे में हमें वहम गुमान नहीं था, तो हमने वही गवाही दी जो हम जानते थे, हमें गैब का इल्म नहीं था। यानी चोर की सज़ा हम अपनी शरीयत के मुताबिक बताई थी। हमें क्या पता था कि वो सामान हमारे भाई के पास से निकलेंगे और हमारे भाई को लोगों ने रख लेंगे। तो भाइयों ने कहा अब काफ़िले वालों से पूछ ले, मिस्र के रहने वालों से जाकर भी पूछ लें, जो कुछ हम बता रहे हैं सच है, इसमें कुछ भी झूठ शामिल नहीं है। तो याकूब अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म नहीं था। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इनके भाइयों ने किया, उसी की वजह से उनके दिल में शक व शुबात थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा बस अब मैं सब्र ही करता हूँ, क्योंकि सब्र सबसे बेहतर है। और साथ में उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ा। उन सबको जमीन से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुनियामिन और बड़ा बेटा मेरे पास पहुँचा देगा, यानी अल्लाह ताला पहुँचा देगा, उनको यकीन था। सब्र जमील यानी जिसमें अल्लाह ताला से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला को 2 गुण ज़्यादा महबूब है। वो कौन सा है? नंबर 1 सब्र का गुण, दूसरा गुस्से का गुण। तो हमारे लिए इसमें सबक क्या है? औलाद की ज़्यादतियों के बावजूद याकूब अलैहिस्सलाम ने औलाद को बुरा भला नहीं कहा और ना ही उन्हें बदुआएं दी, बल्कि बच्चों के साथ ही रहे। क़ता ताल्लुक़ नहीं करना चाहिए हमें भी, और बच्चों को दरगुजर करना चाहिए। हमेशा आफ़ियत की दुआ मांगे, सब्र की दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मुसीबत बलाओं पर सब्र होता है क्या? अल्लाह ताला ही इल्म हिकमत वाला है ना, तो उस पर तवक्कल करना चाहिए। उससे जो मांगे वो देने के लिए कादिर है ना। तो मुसीबत पर सब्र मांगने से उनको मुसीबतें और बढ़ती गई ना, तो सब्र मांगने के बजाय मुसीबतों को दूर करने की दुआ करनी चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से मुंह फेर लिया और कहा हाय अफसोस, ये सदमा दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा कर देता है। तो रोते हुए उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। गम को दबाए हुए थे। बेटों को कुछ बदुआएं नहीं दी थी, न डांटा था, बल्कि सब्र इख्तियार किया था। अल हुज़्न से मतलब गम, और कज़ीम से मतलब गम को अंदर छुपाना। आज हम क्या करते हैं? बच्चों से तकलीफ़ होते हैं, उनको बदुआएं देना शुरू कर देते। तो बेटों ने कहा वल्लाहु, आप हमेशा यूसुफ की याद में ही लगे रहेंगे। भाइयों के हसद की आग और भड़क उठी और अपने बाप को कहा यूसुफ के गम में तो तुम घुल घुल कर ख़त्म ही हो जाएंगे। यानी रोना रहम की अलामत है। किसी के फौत होने पर भी रोने से मना नहीं किया गया, मगर गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। इससे हमें भी सबक मिलता है कि हर दफ़ा अपने गम लोगों से बताने के बजाय अल्लाह से दुआ करें। अगर हम बार बार अपने गम लोगों को दिखाते जाएंगे ना, बोलते जाएंगे ना, तो लोग हमारे से मिलना भी छोड़ देंगे और हमसे बेजार हो जाएंगे। कभी कभार मोरल सपोर्ट देने के लिए सुन लेना चाहिए, लेकिन हमेशा कोई भी अगर सुनाते बैठ गए तो हम उससे बेजार हो जाते ना। तो वही बात का यहाँ पर जिक्र किया गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो अपनी परेशानी की शिकायत और रंज की फरियाद अल्लाह ताला ही से कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब पूरा होना है, ये यकीन था याकूब अलैहिस्सलाम को। तो वो ज़रूर मेरा यूसुफ ज़िंदा है और हम सबकी मुलाकात उसके साथ होगी और सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिजदा करेंगे। इस बात का याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था। तो हम पर परेशानी लोगों को बताने के बजाय इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह दुआ करना चाहिए। वो है वक्त हमारी बातें सुनने तैयार नहीं रहते ना, वो कभी ताना नहीं देगा, बल्कि मुश्किल से निकालने के लिए ज़रिए बनाएगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, भाइयों, बादशाह, जुलेखा, सबका इम्तिहान ही इम्तिहान चल रहा था यहाँ पर। तो इस आयत में याकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह सुब्हानहू तआला से कितना लगाव था, कितना उनकी ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन था, ये हमें पता चल रहा है। ऐ मेरे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को अच्छी तरह से तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तो मायूसी इंसान को कुफर की तरफ ले जाती। तो जब कभी गम आए, शैतान हमें अल्लाह की रहमत से मायूस करवाता है। तो अहले ईमान को क्या चाहिए? सख्त से सख्त हालात भी आ जाएंगे तो सब्र और रज़ा के साथ अल्लाह की रहमत को वसी समझ के उसी से रहमत की उम्मीद करना चाहिए और उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नबियों के दर पे आजमाइश आती रही तो हम क्या चीज़ है ना, सोचना चाहिए। तो इंसान फ़ौरन जादू टोड़ने कोई कर दिए बोल उठते ना, और कुफर में शैतान ढकेल कर गुमराह करना चाहता है। जादूगरों के पास या फिर किसी इलाज करने के पास जाते हम तावीज़ गंडे शुरू कर देते। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ज़िंदगी में दुख, परेशानी, मसाइब, बीमारी सब कुछ ज़रूर आएंगे। जैसा हमारा गुमान अल्लाह ताला से होगा वैसा ही हमारे लिए रास्ते बनाएगा। तो अल्लाह से उम्मीद तोड़ देना मायूस होना है, और हर मायूसी कुफर की तरफ ले जाती। अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा वसी है, वो हर चीज़ करने पर कुदरत रखता है। अच्छे दिनों की उम्मीद और इंतज़ार करना भी इबादत है। रूह अल्लाह से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत है। मैं दाखिल, फिर जब वो दाखिल हुए अलैहि
उस पर। क़ालू वो कहने लगे या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना, ए अज़ीज़ पहुँची हमें, अहलना और हमारे घर वालों को, ज़ुर्र तकलीफ़, वजीना और लाए हम, बिज़ातिन हम पूंजी, सरमाया, मुज़्जतिन हक़ीर, फ़ौफ़ी बस पूरा पूरा दे दीजिए, लना हमारे लिए, अलकैल गल्ला, व तसद्दक़ और सदका कीजिए, अलैना हम पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन सदका करने वालों को बदला देता है। क़ाला हल अलिमतुम, उसने कहा क्या तुम जानते हो, माँ जो फ़अलतुम किया तुमने, बी यूसुफ़ा साथ यूसुफ़ के, व अख़ीही इसके भाई के, इस अंतुम जाहिलून जबकि तुम जाहिलों में से थे। क़ालू आइन्नका, उन्होंने कहा क्या बेशक तू, ला अंता अलबत्ता तू है, यूसुफ़ यूसुफ़, क़ाला अना, उसने कहा मैं हूँ यूसुफ़ यूसुफ़, व हाज़ा अख़ी और ये है मेरा भाई, क़द तहक़ीक़ मन अल्लाहु एहसान किया अल्लाह ने, अलैना हम पर, इन्नहु बेशक वो, मन यत्तक़ी जो तक़वा करे, और वयस्बिरु और सब्र करे, फ़इन्ना तो यकीनन अल्लाह ताला, ला युज़िउ नहीं वो ज़ाया करता, अजरुल मुहसिनीन एहसान करने वालों का अजर, मुहसिनीन का अजर। क़ालू तल्लाही, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ आसारा का तरजीह दी तुझे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अलैना हम पर, व इन और बेशक, कुन्ना लख़ातीन थे हम खताकार। क़ाला ला तसरीबा, इसने कहा नहीं कोई मलामत, अलैकुम तुम पर, अल-यौमा आज के दिन, यग़फ़िरुल्लाहु माफ़ कर दे अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, वह हुवा अरहमुर राहिमीन और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और सब रहम करने वालों में से। भाइयों ने तीसरी मरतबा मिस्र गल्ला के लिए आए थे और कहने लगे हम और हमारे घर वालों को बहुत तकलीफ़ पहुंची है, हमारे पास बहुत कम पूंजी है, आप हम पर सदका कर दें गल्ला, अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बढ़ा चढ़ा कर देगा। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की आजिज़ी बेबसी देखी तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और दिल भर आ गया, और उन्होंने कहा तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया था। सुभान अल्लाह, भाइयों की ज़्यादतियों का जिक्र भी इख़लाक़ करीमाना के साथ किया था ना उन्हें, ना ताने दे के, नहीं डांट के, नहीं कुछ नहीं, तो तुम नादान थे और जाहिल थे कहा, ये नहीं कहा कि तुम मुजरिम हो, नहीं कहा। तो भाइयों ने कहा क्या वाकई तू ही यूसुफ़ है, जवाब दिया हाँ मैं ही यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है। जिन भाइयों ने उन्हें बचपन में कनान के अंधेरे कुएं में फेंक दिया था, फिर उनका रवैया भाइयों के साथ कितना बेहतर था, देखें और करें अपनी ज़िंदगियों में, क्या हम ऐसे हालात में ऐसा काम कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ज़ल व एहसान है कि मुझे कुएं से निकाल कर मुझे यहाँ ला बिठाया। जो कोई तक़वा इख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह ताला इसका अजर कभी ज़ाया नहीं करता। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी तारीफ़ नहीं की, बल्कि ना ही अपनी बादशाहत का गुरूर तकब्बुर दिखाया, बल्कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल एहसान कहा। तो हम भी अगर नेकी करते तो उसको अल्लाह ताला का फ़ज़ल समझे, और हम रियाकारी करके तकब्बुर करके उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनकी शान देखी तो कसम खाई अल्लाह की और कहा अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया और आपको हम पर बरतरी दी गई कहा। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी अफ़ू दरगुज़र से काम लेते हुए फरमाया जो हुआ सो हुआ, आज तुम्हें कोई मलामत नहीं की जाएगी। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़तह मक्का वाले दिन कुफ़ार मक्का से यही आयत पढ़कर माफ़ फरमा दिया था। तो जो आपके खून के प्यासे थे, ईज़ाएँ दी थी, मक्का से निकाला था, वो सब लोग अल्लाह ताला उनके दिलों को फेर दिया और बाज़ ईमान ले आए, बाज़ जज़िया देकर रहने लगे। इज़हबू बी ख़मीसी, ले जाओ मेरी ख़मीस, हाज़ा फ़ाल्क़ू, ये फिर डाल दो उसे, अला वजही अभी, अपने बाप के चेहरे पर, याती वो हो जाएगा, बसीरन देखने वाला, अतूनी और ले आओ मेरे पास, बे अहलिकुम अपने घर वालों को, अजमईन सब के सब। वलम्मा फ़सलतिल ईरु, और जब जुदा हुआ काफ़िला, क़ाला उसने कहा, अबूहुम उनके वालिद ने, इन्नी बेशक मैं, ला अजीदु अलबत्ता मैं पाता हूँ, रिहुन खुशबू हवा, यूसुफ़ की, लौला अगर ना अन तुफन्निदून ये कि तुम बहका हुआ कहो मुझे। क़ालू तल्लाही, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, इन्नका बेशक आप, लफ़ी ज़लालिका अलबत्ता गलती पर है, अलक़दीम अपनी पुरानी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा कुर्ता लेकर जाओ और अपने वालिद के मुंह पर डालो, वो देखने लगेंगे और तुम तमाम ख़ानदान के साथ मिस्र आना। तो क़मीज़, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी मैं, क़मीज़ की कोई बरकत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से याक़ूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आई थी। अभी काफ़िला मिस्र से क़मीज़ लेकर निकल ही पड़ा था कि वहाँ याक़ूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगी।
कहने लगे कि अगर तुम मुझे पागल ना समझो यानी तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने चाहा तो अंबियाओं को गैब का इल्म की खबर दे सकता ना। तो अल्लाह ने चाहा यहाँ पर, इसीलिए उनको बेटे की खुशबू आई थी, जबकि वो अपने इलाके फ़लस्तीन के इलाके के कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वहाँ पर उनको खुशबू नहीं आई ना उनके वालिद को। अब 8 मील के फासले पर मिस्र में होने के बावजूद उनके कुर्ते की वजह से उनको खुशबू आ रही, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है ना, सुभान अल्लाह। तो दुआ में भी दवा में भी शिफा अल्लाह के ही हुक्म से मिलती। तो यहाँ पर एक ज़ाहिरी असबाब थे कुर्ते, लेकिन इनकी बीनाई वापस आना अल्लाह ताला की तरफ से था। और आयत 95 में ज़लालुन से मुराद वाहलाना मोहब्बत जो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से थी। बेटों ने कसम खाकर कहा, इतने सालों के बाद भी तुम वही यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पागल हो गए हो। ये बेटे तो जो घर पर थे ना, वो उसने कहा अल्लाह वालम, मगर उनके अहल वालों ने भी रवैया बुरा ही इख्तियार कर रखा था उनके साथ में। फ़रतद्दा बसीरा, तो वो हो गया देखने वाला। क़ाला अलम, उसने कहा क्या नहीं, अक़ुल, मैं कहता था, लकुम, तुम्हारे लिए, इन्नी, बेशक मैं, आलमु, ज़्यादा जानता हूँ, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। क़ालू, उन्होंने कहा, या अबाना अस्तग़फ़िर लना, हमारे लिए अब्बा जान बख्शिश मांगिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना ख़ातीन, बेशक हम ख़ताकार हैं। क़ाला सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम, क्या ज़रूर मैं बख्शिश मांगूँगा तुम्हारे लिए। कहा, ज़रूर मैं बख्शिश मांगूँगा तुम्हारे लिए। रब्बी इन्नहु, बेशक वो, हुवल गफ़ूरुर रहीम, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। फ़लम्मा दख़लू अला यूसुफ़ा, फिर जब वो दाखिल हुए ऊपर यूसुफ के, अवा इलैहि अबवैहि, उसने ठिकाना दिया अपनी तरफ अपने वालिदैन को। वक़ाल उदख़ुलू, और कहा दाखिल हो जाओ, मिस्र में, इंशाअल्लाहु आमिनीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन वाले होकर। वरफ़ा अबवैहि, और ऊपर बिठाया अपने वालिदैन को, अलल अर्शी, तख्त पर, वक़र्रू, और वो सब गिर पड़े, लहू, उसके लिए, सुजदन, सिजदा करते हुए। वक़ाला या अबती, और कहा मेरे अब्बा जान, हाज़ा तावीलु रुया, या ये है ताबीर मेरे ख्वाब की, मिन क़ब्लु, इससे पहले, क़द जालहा, तहक़ीक़ कर दिया उसे, रब्बी, मेरे रब ने, हक़्क़न, सच्चा, वक़द अहसना, और तहक़ीक़ इसने एहसान किया, बी, मेरे साथ, इज़ अख़रजनी, जब इसने निकाला मुझे, मिनस्सिजनी, क़ैद खाने से, वजाअ, और वो ले आया, बिकुम, तुम्हें, मिनल बदवी, मिन बादी, सहरा से, बाद उसके, अन्नाज़ाक़ा शैतान, और फसाद डाला शैतान ने, बैनी, दरमियान मेरे, बैना इख़वाती, और मेरे भाइयों के दरमियान, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, लतीफ़ुन, बेहतरीन तदबीर करने वाला है, लिमा, उसकी जो, यशाउ, वो चाहता है, इन्नहु, बेशक वो, हुवल अलीमुल हकीम, वो बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला, हिकमत वाला है। रब्बी क़द आतैतनी, ऐ मेरे रब, तहक़ीक़ दिया तूने मुझे, मिनल मुल्की व अल्लमतनी, बादशाहत में से, और सिखाया तूने मुझे, मिन तावीली, हकीकत में से, अल अहदीस, बातों की, फ़ातिरस समावाती वल अर्ज़, ऐ ज़मीन आसमान को पैदा करने वाले, अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा, तू ही मेरा दोस्त है दुनिया और आखिरत में। तवफ़्फ़नी मुस्लिमों वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, तू फ़ौत करना मुझे मुसलमान फरमाबरदार, और मिला देना मुझे सालिहीन में से। ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबी, ये ख़बरें हैं गैब की, नूही, हम वही करते हैं, इलैका, आपकी तरफ, वमा कुंता, और ना थे आप, लदैहिम, पास इनके, इज़ अजमाऊ, जब उन्होंने इत्तेफ़ाक़ किया, अमरहुम, अपने मामले पर, वहुम यमकुरून, और वो चालें चल रहे थे। वमा अक्सरुन्नासी, और नहीं अक्सर लोग, वलो, और अगरचे, हरस्ता बिमोमिनीन, हिस करें ईमान वालों पर। वमा तसअलुहुम, और नहीं आपसे सवाल करते, अलैहि, उस पर, मिन अजर, किसी अजर का, इन हुआ, मगर, इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, एक ज़िक्र है तमाम जहान वालों के लिए। वकाइम मिन आयातिन फ़िस समावाति वल अर्ज़, और कितनी निशानियाँ हैं आसमानों और ज़मीन में, यमुरद्दूना, वो गुज़रते हैं, अलैहा, उन पर, वहुम अन्हा मोरिज़ून, और वो एराज़ करने वाले हैं इनसे। वमा युमिनु अक्सरुहुम, और नहीं वो ईमान लाते अक्सर उनके, बिल्लाही, अल्लाह पर, इल्ला वहुम मुशरिकुन, मगर इस हाल में कि वो मुशरिक है। अफ़ा आमिनु, क्या भला वो अमन में आ गए, अन तातियहुम, कि आ जाए इनके पास, ग़ाशियतन, एक छा जाने वाली आफत, मिन अज़ाबिल्लाहि, अल्लाह के अज़ाब से, और तातियहुम, या आ जाए इनके पास, अस्साअतु बग़्ता, अचानक क़यामत, वहुम ला यशऊरून, और ना वो शऊर रखते हों।
कुल हाज़िही, कह दीजिए ये है सबीली, रास्ता मेरा, अदउ, मैं बुलाता हूँ, इलल्लाहि, अला बसीरा, तरफ अल्लाह की बसीरत पर, अना, मैं, वमनी तबानी, और जो कोई पैरवी करे मेरी, व सुबहानल्लाहि, और पाक है अल्लाह, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं मैं शिरक करने वालों में से, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले, इल्ला रिजालन नूही, मगर मर्दों को हम वही करते थे, इलैहिम, तरफ उनके, मिन अहलिल क़ुरा, बस्ती वालों में, अफलम, क्या फिर नहीं, यसीरू, वो चले फिरे, फिल अर्ज़ि फयंजुरू, ज़मीन में तो वो देखते, कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, किस तरह हुआ अंजाम इन लोगों का जो इनसे पहले थे, वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ, आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करे, अफ़ला ताक़िलून, क्या भला नहीं वो अक़ल से काम लेते, हत्ता इज़्ज़ा, यहाँ तक कि जब ना उम्मीद हो गए रसूल वज़न्नु, और उन्होंने समझा, अन्नहुम, के बेशक वो, क़द यकीनन, कुज़िबू, वो झूठ बोले गए, जाहुम, आ गई उनके पास, नसरुना, मदद हमारी, फ़नुज्जिया, तो बचा लिया गया, मन नशाउ, उसको जिसे हम चाहते हैं, वला युरद्दु, और उन्हें फेरा जाता है, बासुना, अज़ाब हमारा, अनिल कौमिल मुजरिमीन, मुजरिम कौम के लोगों पर, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम, अलबत्ता ताक़ीक़ इनके क़िस्सों में, इबरतुन, इबरत है, लिउलिल अलबाब, अक़ल वालों के लिए, मा काना हदीसन, नहीं है ऐसी कोई बात, युफ्तरा, जो घड़ ली गई है, वलकिन तस्दीक़ा, और लेकिन तस्दीक़, अल्लज़ी बैन यदैहि, इस चीज़ की जो इससे पहले है, व तफ़सीला कुल्ली शै, और तफ़सील है हर चीज़ की, व हुदन व रहमा, और हिदायत है और रहमत है, लिक़ौमिन युमिनून, इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। जब बड़े बेटे ने आकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता अपने बाप के चेहरे पर डाले तो उनकी बीनाई वापस आ गई, ये मोजिज़ा था। और याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कहता था ना कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, जो मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जिसको तुम नहीं जानते, वही यानी वही इल्हाम जो आती थी ना, तो वो थी। और उनका जो बचपन में जो ख्वाब देखा गया था, तो वो याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था कि वो होकर रहने वाला है, तो बिना हुए तो ऐसा नहीं मिलना नामुमकिन था ना, तो उनको यकीन था अल्लाह की ज़ात पर। दिल में आजिज़ी व इनकिसारी हो तो फिर ज़बान से भी नरम बातें ही निकलती है। तो भाइयों ने अपनी गलती का एतराफ़ करा और अपने बाप से इस्तग़फ़ार करने की रिक्वेस्ट की। कहा, अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, यानी तहज्जुद के वक्त, वो बहुत बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। तो भाइयों ने ज़्यादती यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ की थी, तो उनसे भी मशवरा करके दुआएँ करेंगे। तो हमारे लिए सबक क्या है इसमें, भाइयों की ज़िंदगी कैसी थी और इस सूरत के आखिर में क्या हो गई। हमें भी शर्मिंदगी, एतराफ़, गुनाह हो फिर माफ़ी मांगे और आगे को ज़िंदगी में तक़वा अख्तियार करें। जब सारा ख़ानदान मिस्र पहुंचा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें इज़्ज़त एहतराम के साथ अपने साथ जगह दी और कहा, अल्लाह ताला को मंजूर हो तो आप सब अमन व अमान के साथ मिस्र में रहोगे। और इन्हीं की नस्ल से बनी इसराइल बने और मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तब उन्होंने फ़िरौन से कहा था, मेरे साथ बनी इसराइल को फ़लस्तीन भेज दीजिए, जहाँ से वो याकूब अलैहिस्सलाम आए थे, वही उनका असली वतन था। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और वो सब के सब सजदा ताज़ीमी में गिर गए तो याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ था ये। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जब ख्वाब में मैंने बचपन में जो देखा था उसकी आज ताबीर इतने सालों बाद पूरी हुई है। तो अल्लाह ताला ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया है। कुएँ का जिक्र इसलिए नहीं किया, भाइयों ने माफ़ी मांग ली थी, फिर उसका जिक्र करके उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे वो, तो मुझे जेल से निकाला गया, ये कहा। यानी कुएँ का तो जिक्र उन्होंने निकाला ही नहीं और कहा कि मुझे जेल से निकाला, आप लोगों के सहरा से लेकर शहर में ले आया और मिला दिया, जबकि जो इख्तिलाफ शैतान ने हम भाइयों में डाला था दरमियान में फूट डालने के लिए, ये भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का करीमाना अखलाक था जो भाइयों को ताना नहीं दिया। हमें भी इसमें हमारे लिए सबक है। लतीफ़ुल लिमा यशा जो वर्ड है ना, इसमें बारीकी से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो खैर अल्लाह ताला ने कुएँ से लेकर आज तक पहुँचाई, यानी बादशाह तक पहुँचाई, वो खैर अल्लाह ताला हमें भी पहुँचा सकता। तो वो जानने वाला, हिकमत वाला है, तो हम जो भी उसका फ़ैसला है उस पर राज़ी रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला की तमाम इनामत का जिक्र करके दुआ करते हैं कि मुझे हुकूमत दी, ख्वाबों की ताबीर सिखाई, ऐ आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, तू ही मेरा दुनिया में और आखिरत में वली है, कारसाज है। तो मुझे इस्लाम की हालत में मौत देना और मुझे नेक लोगों में मिला देना। तो दुआ का तरीक़ा सिखाया गया यहाँ पर, पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना, फिर आजिज़ व इनकिसारी, फिर हाजत का मांगना। तो रात कितनी भी लंबी हो जाए दिन ज़रूर आता ना,
تو उसी तरह से मुसीबतें चाहे जितनी भी बड़ी हो उसके बाद राहत ज़रूर मिलेगी। हर मुसीबत ज़दा के लिए इस में अल्लाहुल मुस्तान में भी सबक है, ये सूरत में भी सबक है, औलाद की तरबियत का भी तरीक़ा हमें मिलता। तो हम सब के लिए कुरान क्या है, रिमाइंडर है। कोई मुश्किल अल्लाह के सामने मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल हमें अल्लाह से करीब कर दे वो मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, तो इंसान जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता मौत उसी के मुताबिक आती है। तो हुस्न खातिमा उन्हीं को नसीब होता जो तक़वा इख्तियार करना चाहते हैं। एक्चुअली मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों से जाकर पूछा था कि हमें कोई ऐसा क़िस्सा सुनाओ या बात बताओ जो हम जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे तो वो जवाब देने से खासिर रहेंगे। तो यहूदी खुद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा मुकम्मल नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का फ़लस्तीन से मिस्र कैसे पहुँचे उस पूछो। तो उसके जवाब में ये पूरी सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, जिससे ये वाज़ह हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या वही के ज़रिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, क्योंकि आप उस वक्त वहाँ नहीं थे और ना ही किसी से इल्म हासिल किए थे। तो ये दलील काफ़ी थी ना कि आपकी नबूवत तस्दीक करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दलीलें बताने के बावजूद, लाख कोशिश करने के बावजूद अक्सर लोग ईमान नहीं लाए थे। तो पिछली कौमों के वाक़यात तो सुनते हैं मगर इबरत हासिल नहीं करते, तो जिसकी वजह से ईमान से वो लोग महरूम रहे। तो अब हमारे लिए क्या सबक है, हम भी किस्से कहानियाँ सुन तो रहे, लेकिन इससे अगर हम इबरत नहीं हासिल करेंगे तो फिर भी हम इनकी तरह गुमराही में रहेंगे। तो कोई नबी भी दीन की तौहीद फैलाते वक्त अपनी उजरत नहीं मांगी थी, बल्कि आखिरत के अजाब से बचने का तरीक़ा बता रहे थे। तो तमाम दुनिया वालों के लिए नसीहत थी, वास था, आखिरत की फ़िक्र करने की दावत दे रहे थे। आसमानों और ज़मीन में बेशुमार निशानियाँ हैं, उसके वजूद और उस बात पर दलालत करते हैं कि कोई एक खालिक इसका है जो चलाना है। सारी दुनिया घूमते फिरते देखते, हर चीज़ देखते हैं हम लोग, फिर भी उस पर गौर फ़िक्र नहीं करते। तो ना ही अल्लाह ताला को पहचानते, ना उसको पहचानने की कोशिश करते। तो ऐसी ज़िंदगी क्या किस फ़ायदे की है। तो वही इस आगे की आयत में बताया जा रहा है कि हर दौर में लोग तौहीद रबूबियत के तो कायल थे, मगर तौहीद उलूहियत का इनकार करते थे। अक्सर लोग ईमान ले आते थे, फिर भी मुशरिकाना हरकतें करते थे। इसका मतलब क्या है, हम मुसलमानों में भी लोग ईमान तो ले आते, लेकिन दरगाहों पर, वलियों के पास, उनकी मज़ारों पर जाके नज़र नियाज करना, हमारी नौकरी, औलाद, दोस्त, रिश्तेदार को खुश करने के लिए अल्लाह के हुक्म नहीं मानना, उनकी खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ करना, ये सारी चीज़ें भी क्या है, ये इनकी आदतें हैं यहूद नसारा की। तो इंसान बेखौफ होकर कैसे ज़िंदगी गुजार सकता, बताइए आप। कोई अजाब आ जाए या क़यामत ही आ जाए और हम गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इंसान की मौत ही उसकी क़यामत है ना। तो मौत से इंसान की क़यामत शुरू हो जाती। तो ऐसी हालत में आप क्या कर सकते। तो अभी वक्त रहते हुए हमें कुरान को और हदीस को समझकर पढ़ना चाहिए, उसका इल्म हासिल करना चाहिए, और उसके बाद हक़ बातिल का फ़ैसला खुद आप करें। किसी फ़िरक़े को जानने से पहले आप खुद कुरान को समझें। अल्लाह ताला आपको सलाहियत दी, इल्म दिया, पढ़ने की सलाहियत दी, दिमाग दिया ना, तो उसका इस्तेमाल करें। हर नबी की दावत सिरातुल मुस्तकीम ही रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौहीद की दावत दिए और ख़ुद को शिर्क से बरी फरमाया। हर नबी भी मर्द ही अब अपनी कौम की तरफ आया था ना, और शहरों वालों में से ही था, और ज़मीन पर चलते फिरते भी थे, तिजारत के लिए भी जाते थे, अपने घर के काम भी अंजाम देते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्द होने पर क्यों एतराज़ करे लोग। तो इबरत हासिल नहीं करते, बल्कि दुनिया की हकीकत कुछ और ही पेश करते लोग। तो यकीनन आखिरत का घर परहेज़गारों के लिए बहुत बेहतर है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर भी अगर अकल से काम नहीं लेंगे तो फिर गुमराही में है। तो आगे 110 आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर तसल्ली दे रहे हैं। किसी कौम पर अजाब में ताख़ीर अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक मोहलत दी गई है। तो वो समझते थे कि पैगम्बर अजाब का झूठा दावा कर रहे हैं। अगर फ़ौरन अल्लाह ताला की मदद नबियों को पहुँचती, फिर ईमान वालों को बचा लिया जाता और काफिरों को अजाब पकड़ लेता, तो फिर उनकी नस्लें कट जाती थी ना। तो हो सकता था उनकी नस्लों में से कोई ईमान ले आए। यानी कुरान में दिगर कौमों के क़िस्से और वाक़यात का ज़िक्र सच्चा है, और पिछली किताबों की और नबियों की तस्दीक करती है। और कुरान में ईमानदारों के लिए रहमत और हिदायत है। सारी कायनात के लिए ये कुरान नाजिल हुआ है। अक़ल वालों के लिए नसीहत है, इबरत हासिल कर सकते वो लोग। कुरान झूठी किताब हरगिज़ नहीं हो सकती। तो मोमिन का किरदार दुनिया में क़ैद खाने में, इक़्तिदार पाने के बाद ग़ुलामी में घर वालों के रवैये पर कैसा सब्र करना, तबलीग का तरीक़ा क्या है,
हसद, जलन, नज़र बद, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना, सब्र में क्या दुआएं करना चाहिए, दुआ का क्या तरीक़ा होना चाहिए, शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, अल्लाह के एहसानात को याद रखना चाहिए, मायूसी कुफर की तरफ ले जाती तो उसे बचना चाहिए। चाहे हम कितना भी इल्म हासिल कर लें, ख़ुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला कभी किसी बंदे का बुरा नहीं चाहता। तौबा कबूल करने वाला वही है। शैतान ख़ानदानों में लड़ाता है, एक दूसरे को हम माफ़ करते हुए, सिला रहमी करते हुए, एहसान करते हुए ज़िंदगी गुजरना असल कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूसुफ यहाँ मुकम्मिल हुई। अब हम सूरह रात शुरू करेंगे। ये मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब। ये हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू है। तिल्का आयातुल किताब से मुराद अल्लाह ताला की आयत है। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका, और जो कुछ नाजिल किया गया तरफ आपके, मिर रब्बिका, आपके रब की तरफ से, अलहक़, हक़ है। वलकिन्ना अक्सर नासी ला युमिनून, और लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनाहा, अल्लाह ताला वही है जिसने बुलंद किया आसमानों को बग़ैर सुतूनों के, जिन्हें तुम देखते हो। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो बुलंद हुआ अर्श पर। वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, और उसने मुसख्खर किया सूरज और चाँद को। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, चल रहे हैं एक वक्त मुकर्रर तक। युदब्बिरु, वो तदबीर करता है, अल अम्र, काम की। युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, वो खोल कर बयान करता है आयत को ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा, और वही है जिसने फैला दिया ज़मीन को और बनाए इसमें पहाड़, रवासिया व अनहारा, और नहरें, वमिन कुल्लि समराती, और हर किस्म के फलों। जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैनी, इसने बनाए इसमें जोड़े दो दो। युग़शिल लैला नहारा, वो ढांपता है रात को दिन पर। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। वफ़िल अर्ज़ि क़िताउन, और ज़मीन में टुकड़े हैं, मुतजाविरातुन, बाहम मिले हुए, व जन्नातुन, और बागात है, मिन अनाबिन, अंगूरों के, व ज़रउन, और खेतियाँ, व नक़ीलुन, और खजूर के दरख्त, सिनवानुन, जड़ से मिले हुए, वग़ैर सिनवान, और बग़ैर जड़ से मिले हुए। युस्क़ा, वो पिलाए जाते हैं, बिमा इन वाहिद, पानी एक ही। व नुफ़ज़्ज़िलु, और हम फजीलत देते हैं, बाज़हा, उनके बाज़ को, अला बाज़, बाज़ पर। फ़िल उकिली, फलों में। इन्ना फ़ी ज़ालिका, यकीनन इसमें, लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अलबत्ता निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते या अक़ल रखते। वइन ताजब, और अगर तुम ताजुब करते हो, फ़अजबुन, तो काबिल ताजुब है, क़ौलुहुम, बात इनकी, आइज़ा कुन्ना, क्या जब हम हो जाएंगे, तुराबन, मिट्टी, आइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, क्या बेशक हम अलबत्ता पैदाइश में होंगे नई। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ़र किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ। व उलाइका, और यही लोग, अल अग़लालु, तो होंगे, फ़ी अनाक़िहिम, जिनकी गर्दनों में। व उलाइका, और यही लोग हैं, अस्हाबुन नार, आग के साथी। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले। व यस्ताजिलूनका, और वो जल्दी मांगते हैं आपसे, बिसय्यिआति, बुराई को, क़ब्लल हसना, भलाई से पहले, वक़द ख़लत, हालांकि तहक़ीक़ गुज़र चुकी, मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले, मसूलत, इबरतनाक मिसालें। व इन्ना रब्बका, और बेशक आपका रब, लज़ू मग़फ़िरह, अलबत्ता बख्शने वाला है, लिन्नासी, लोगों के लिए, अला ज़ुल्मिहिम, बावजूद उनके जुल्म के। व इन्ना रब्बका, और बेशक तेरा आपका रब, लशदीदुल इक़ाब, अलबत्ता सख्त सज़ा देने वाला है। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो जिन्होंने कुफ़र किया, लौला, क्यों नहीं, उन्ज़िला अलैहि आया, उतारी गई उस पर कोई निशानी, मिर रब्बिही, उसके रब की तरफ से। इन्नमा अंता, बेशक आप तो, मुंज़िरुन, डराने वाले हैं, वलिकुल्लिन, और वास्ते हर कौम हाद, कौम की एक हादी, हिदायत की तरफ। अल्लाहु यालमु, अल्लाह ताला जानता है, मा तहमिलु, जो कुछ उठाती है, कुल्लु उनसा, हर मादा, वमा तक़ीज़ु, और जो कुछ कमी करते हैं, अल रहम, वमा तज़दादु, और जो कुछ वो ज़्यादा करते हैं, वकुल्लु शैइन, हर चीज़, इंदहु बिमिक़दार, इसके पास एक अंदाज़े की है। आलिमुल ग़ैबि व शहादा, जानने वाला है गैब और हाजिर का, अल कबीरतुल मुताल, सबसे बड़ा है, बहुत बुलंद है।
सवाउन मिनकुम बराबर है तुम में से, मन असर्रा जो छुपा कर करे, अलकौला बात को, वमन जहरा बिही और जो कोई जाहिर करे, वमन और जो कोई हुआ मुस्तक़फिन वो छुपने वाला, बिल्लैली व सारिबु बिन्नहार रात को और चलने वाला दिन को, आक़िबतुन इसके लिए पहरेदार है, मिन बैनी यदैहि उसके सामने से, व मिन खल्फी और उसके पीछे से, यहफ़ज़ूनहु वो हिफाजत करते हैं, मिन अमरी इसके हुक्म से, अल्लाह अल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला युग़य्यिरु नहीं वो बदलता, मा भी कौमी जो किसी कौम में से, हत्ता युग़य्यिरु यहाँ तक कि वो बदल दे, मा भी अनफुसिहिम उसको जो उनके दिलों में है, व इज़ा अरादल्लाहु और जब इरादा करता है अल्लाह, बी कौमिन साथ किसी कौम के, सूअन किसी बुराई का, फला मरद्दा तो नहीं कोई फेरने वाला, लहू वमा उसे और नहीं, लहुम उनके लिए, मिन दूनिही इसके सिवा, मिमवाल कोई मददगार, हुवल्लज़ी युरीकुम वही जो दिखाता है तुम्हें, अलबरक़ा बिजली की चमक, खौफन व तमा खौफ और उम्मीद से, वयुनशिउ और उठाता है, साहब सिक़ाल बादल बोझल, वयुसब्बिहु राद और तस्बीह करती है कड़क, बिहम्दिही साथ उसकी तारीफ़ के, वल मलाइकति मिन क़ीफ़ा और फरिश्ते उसके खौफ से, वयुरसिलु और वो भेजता है, सवाइक़ा कड़कती बिजलियों को, फयुसिबु फिर वो पहुँचाता है, बिहा साथ उसके जो, मन यशाउ जिसे वो चाहता है जिस पर वो चाहता है, वहुम युजादिलून हालांकि वो झगड़ रहे होते, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, वह हुआ शदीदुल मिहाल और वो सख्त क़ुव्वत वाला है। यानी ये सूरत की आयत भी हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान और इसकी आयतें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई है और ये सच्ची है। यानी वही मतलूबा वही गैर मतलूबा मैंने पहले बता चुकी ना, तो वही मतलूबा से मुराद कुरान की आयतें हैं और वही गैर मतलूबा से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं, लेकिन माने मतलब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, जैसे कि हदीस। तो कुरान के अल्फाज और माने दोनों अल्लाह ताला की तरफ से है, इसकी तिलावत भी की जाती, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते। आज हम में अक्सरियत यानी आबा अजदाद की पैरवी करते हैं ना, चाहे वो गुमराही में क्यों ना हो। आयत नंबर 2 में, इस आयत में अल्लाह ताला कायनात में गौर व फिक्र करने का तरीक़ा सिखाया गया है। अल्लाह सुब्हान ताला वो ज़ात है जो बग़ैर सुतूनों के आसमान को ठहराया है और अर्श पर मुस्तवी हुआ, चाँद सूरज की ड्यूटी मुकर्रर कर दी, सूरज अपना दौरा 1 साल में करता है और चाँद अपनी मंजिलें 1 माह में तय करते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म के ताबा है। इनकी फरमाबरदारी देखिए, ये आज़ाद नहीं है, उसके चलाने वाला कानून साज अल्लाह ताला ही है, उसकी तदबीर और हुक्म से दुनिया चल रही है। यानी कभी चाँद हमेशा नहीं रह जाता, कभी सूरज हमेशा नहीं रह जाता, दिन और रात एक तरीक़े से जो 24 घंटे हर दिन होता ना, तो तरीक़े से कौन चला सकता, कोई ना कोई इसका होगा चलाने वाला, तभी तो ऐसा यूनिफॉर्मिटी के साथ चलती ना। सूरज हर दिन अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है और इजाज़त मिलने पर दोबारा तुलू होता है। क़यामत के करीब इसका सजदा कबूल नहीं होगा और वापस लौटने का हुक्म दिया जाएगा, तो फिर वो मगरिब से ही वापस निकलेगा। तो ये निशानी है क़यामत की। चाँद और सूरज सब बेनूर हो जाएंगे। ये सब मिसालें इसलिए दी जा रही है ताकि इंसान शक में ना रहे, कुरान का इल्म हासिल करे और इसमें गौर व फिक्र करे, ताकि इंसान को अल्लाह ताला से मुलाकात पर यकीन हो जाए और उसकी तैयारी कर लें। अब इतनी सारी निशानियाँ बताने के बाद कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो गफलत में ज़िंदगी गुजारेगा? गौर करें, अल्लाह सुब्हान ताला ने ज़मीन को फैलाकर बिछा दी और उसमें पहाड़ें मेखों का काम कर दिए। ज़मीन पर इंसान ताकि आसानी के साथ रह सके, उसमें नहरें रखी, दरिया रखी और हर किस्म के फलों में, जोड़े और जानवरों में नर मादा, दिन के साथ रात वगैरह बनाई है। ये किसके लिए? इंसान के एहतमाम के लिए किए ना अल्लाह ताला। तो फिर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो मुख्तलिफ़ किस्म की पैदा की गई ने जिसमें अक्लमंद के लिए निशानियाँ हैं। एक कंपनी चलाने के लिए अगर बॉस नहीं हो तो वो कंपनी सही नहीं चल सकती, तो ये दुनिया कैसे चल सकती है बग़ैर अल्लाह के? सोचिए। तो ज़मीन में कई किस्म की मिट्टी है, जैसे ज़रात होती है जिसमें बागात है, पथरीली है, रेतीली है, समंदरी है, बंजर ज़मीन है। तो ये सारी चीज़ें एक जैसा रिज़ल्ट नहीं दे सकती ना। बागात में फल होते, खजूर के दरख्त 1 शाख वाले होते, 2 शाख वाले होते, पानी सबको दिया जाता, मगर सबके टेस्ट मुख्तलिफ है और सबके रिज़ल्ट मुख्तलिफ है। जैसे एक माँ बाप की औलाद मुख्तलिफ होती है, कुछ दिल कुरान से हिदायत पाते और कुछ गुमराह हो जाते। तो जैसे अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मोमिन।
اور کچھ دل گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن امی کے ہوئے تھے نا، تو وہی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے جو ساری زمین پر برستی ہے، مگر درخت نرم مٹی پر ہی اگتے ہیں نا، تو چٹان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہی مومن اور کافر کی مثال ہے۔ اور رات کو دن میں اور دن کو رات میں کوئی نہیں بدل سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یعنی زمین ایک، پانی بھی ایک، ہوا بھی ایک، آدم علیہ السلام اور ہوا بھی ایک، مگر انسان، پھل اور غلہ، ذائقے سب کے مختلف ہے۔ تو یہ کون کر سکتا؟ کوئی انسان کے بس میں ہے یہ نہیں نا۔ تو مشرکین مکہ کو دوبارہ اٹھائے جانے پر تعجب تھا۔ اس کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کر سکتا ہے تو اسے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ آخرت کا انکار، رب کا انکار، یہ کفر ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اغلال کا مطلب توق، لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا رہتا ہو جو گردن پہ ڈالا جاتا۔ آیت نمبر 6 میں یہ کفار کو جواب دینے کے لیے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سچا ہو تو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ کہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں پچھلی قوموں پر عذاب الہی کی مثالیں، نشانیاں آپ نے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کے بجائے عذاب مانگ رہے ہیں، اور عذاب مانگنے میں وہ بھی جلدی کر رہے ہیں۔ انسانوں کو ظلم و معصیت کے باوجود وہ مہلت دیتا ہے تو اس کی رحمت ہے، ورنہ فوراً عذاب دیتے تو زمین پر کوئی انسانی باقی نہیں رہتا تھا نا۔ تو فرشتے حفاظت کے اس وقت دور ہو جاتے جب اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا، تو تب اللہ تعالیٰ کی جو بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہو وہ ہو کے رہتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحیمی ہے اور غفور الرحیم کا ذکر ہے، تو ساتھ میں دوسری صفت قہار جبار کا بھی ذکر فرمایا۔ تو دونوں صفات بتا دی گئی ہے کیونکہ انسان امید پر گناہ کرنے میں دلیر نہ ہو جائے، اور اگر خوف ہوتا تو ہر وقت خوف کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے اور کفر میں نہ چلا جائے۔ تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے۔ آیت 7 میں یہاں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا تھا، جیسے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، وہ آپ کرتے رہیے، ان کو ہدایت دینا وہ ہمارا کام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہر نبی کو معجزے حالات کی ضرورت کے تحت، مصلحت کے تحت دیے جاتے، نہ کہ اپنی مرضی سے دکھا سکتے کوئی نبی۔ تو ہر قوم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی پیغمبر ضرور بھیجے گئے، مگر ہدایت کچھ لوگوں حاصل کیے اور ہر قوم میں نافرمان لوگ تھے۔ تو ہر فیمیل کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، نیک ہے یا بد ہے، عمر کتنی ہوگی، خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، سخی ہوگا یا بخیل ہوگا، عالم ہوگا جاہل ہوگا، امیر ہوگا یا غریب ہوگا، گورا یا کالا، کوئی نہیں جانتا۔ مگر آج بولیں گے کہ ہم میل فیمیل تو جان سکتے نا، تو وہ جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور مدت ولادت بھی ماں نہیں جانتی۔ پیٹ کے اندر اللہ اس کو رزق پہنچاتا، پالتا، بڑا کرتا، پھر 9 مہینے کے بعد اس کو باہر لاتا۔ جہاں کسی کی پہنچ ممکن نہیں ہے، وہاں پر جیسے اندھیرے ماں کے پیٹ میں ماں کی خود کی بھی پہنچ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی رزق کا انتظام کرتے، اس کی نشو نما کا، اس کے آنکھ ناک سب بناتے نا۔ ایک نجس نطفے کے قطرے سے کتنا پیارا خوبصورت بچہ بن کے نکلتا، تو وہاں کون بناتے جا کے؟ کوئی ہے انسان جو ماں کے پیٹ میں جا کے اس کے اعضا بنائے؟ تو ایمان والا وہی ہے جو اللہ کے آگے یہ ساری نشانیاں دیکھ کر جھک جائے۔ اور آیت نمبر 10 میں جو کچھ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے یعنی غیب ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا۔ جو دل کے اندر ہے، آواز سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دن میں ہو یا رات میں، اندھیری رات میں ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور ظاہر باطن وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہر انسان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ فرشتے اس وقت اس کی حفاظت سے دور ہو جاتے جب اس کی تقدیر میں کچھ حادثہ ہونا لکھا ہوتا ہے۔ اور کرامن کاتبین بھی ہمارے اعمال لکھنے پر مقرر ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ مقرر رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہر ایک کو دیتا ہے، اور وہ نعمتیں جب چھین لیتا ہے نا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی کثرت، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، جب سزا دینے کا ارادہ کرتا، تو پھر اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آیت 12 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بجلی چمکتی تو امید اور خوف دونوں ہوتے ہیں۔ کسانوں کو بارش اور فصل کی امید، اور بجلی گرنے سے تباہی، موت کا خوف۔ تو قیامت کے قریب بجلیاں بہت گرنے لگیں گی۔ سخت گرمیوں میں بجلی بارش کا پیغام دیتی ہے۔ ایک ہی چیز کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ السحاب ثقال سے بھاری بادل جو آسمانوں پر اٹھائے ہوتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہونے پر وہ بارش کے طور پہ برستے ہیں۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، فرشتے بھی اللہ کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اے انسان، تو کیسے بے خوف ہو کر زندگی گزار سکتا ہے؟ کڑک اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، بجلیاں گراتا ہے جس پر جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، وہ قوت والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ بادل گرجنے کی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے پکارنا برحق، والذین یدعون، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوائے، لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے، لہم، ان کے لیے، بشیء، کسی چیز کا بھی، الا، مگر، کباسط، مانند پھیلانے والے کے، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کے، الی الماء، طرف پانی کے، لیبلغ، تاکہ وہ پہنچے، فاہ، اس کے منہ کو، وما ہوا، اور نہیں وہ، ببالغہ، پہنچنے والا اسے، وما دعا، اور نہیں دعا، الکافرین، کافروں کی، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، وللہ یسجد، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وظلالہم، اور سائے ان کے، بالغدو والآصال، صبح اور شام، من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، قل فتخذتم، کہہ دیجئے کیا پھر بنا لیے تم نے، من دونہ، اس کے سوائے، اولیاء، حمایتی، لا یملکون، نہیں وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم نفعا، اپنے نفسوں کے لیے کسی نفع کا، ولا ضرا، اور نہ کسی نقصان کا، قل حل، کہہ دیجئے کیا، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتا ہے، الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا، ام حل تستوی، یا کیا برابر ہو سکتا ہے، ظلمات والنور، اندھیرا اور روشنی، ام جعلوا للہ، اور یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے، شرکاء، کچھ شریک، خلقو، انہوں نے پیدا کیا، کا خلق، مانند اس کی تخلیق کے، فتشابہ، تو متشابہ ہو گئی، الخلق، پیدائش، علیہم، ان پر، قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہی اکیلا ہے بہت زبردست۔ انزل من السماء ماء فسالت، اس نے اتارا آسمان سے پانی تو بہہ نکلی، اودیۃ، وادیاں، بقدرہا، اپنے اندر سے، فاحتمل السیل، تو اٹھا لیا سیلاب نے، زبداً، جھاگ، رابیاً، چڑھا ہوا، ومما، اس میں سے جو، یوقدون، وہ جلاتے ہیں، علیہ، اس پر، فی النار، آگ میں سے، فی النار ابتغاء، آگ میں حاصل کرنے کو، حلیۃ، زیور، او متاع، یا برتن، زبدٌ، جھاگ ہے، مثلہ، اس جیسا، کذالک، اسی طرح، یضرب، وہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، الحق، حق، والباطل، اور باطل کو، فاما الزبد، کہ تو رہا جھاگ، فیذهب، تو وہ چلا جاتا ہے، جفاء، ناکرا ہو کر، واما، اور لیکن، ما ینفع، جو نفع دیتا ہے، الناس، لوگوں کو، فیمکث، وہ تو ٹھہر جاتا ہے، فی الارض، کذالک، یضرب اللہ الامثال، تو زمین میں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، للذین استجابوا لربہم، ان لوگوں نے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کا، الحسنی، بھلائی، والذین لم یستجیبوا، جن لوگوں نے نہیں قبول کیا، لہو، لیے اس کے، لو، کاش، انا لہم، بے شک وہ ہوتا ان کے لیے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب، ومثلہ، اور اس کی مانند، معہ، ساتھ اس کے، لافتدوا، البتہ وہ فدیہ میں دے دیتے، بھی، اس کو، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے، سوء الحساب، برا حساب، ومأواہم، اور ٹھکانہ ان کا، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کائنات کا خالق، مالک، مدبر، پالنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو اسی کے لیے عبادت کرنی چاہیے، وہی زیادہ حقدار ہے عبادت کا۔ اب یعنی امید اور خوف کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مدد مانگنا اسی کا حق ہے، اس کے سوا غیر اللہ کی مدد مانگتے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہے، تو ہمیں کیا مدد کر سکیں گے وہ لوگ؟ تو سمندر کے پاس کھڑے ہو کر منہ کھولنے سے پانی منہ میں نہیں آتا، اور نہ ہی سمندر کو معلوم ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، تو اللہ کے سوائے جس کو بھی آپ منکرین یعنی عبادت کے لیے پکارتے تو انہیں کوئی نفع نہیں ہوگا سوائے گمراہی کے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرنا ہے، اور زمین آسمان کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا ذکر ہے، ہر چیز اس کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور پہاڑ، درخت جو جھک نہیں سکتے
ان کے سائے شیڈو سجدہ کرتے ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ نافرمانی کرے. مومن ہو یا